students, welcome to Study Boat. Today we will discuss about the subject law of torts, which is an important component of your exam, that is CLAT or AILET. So before coming to our topic or background of this subject, the major portion which we will cover today is general defenses under law of tort. So in the background of these defenses, there are some important constituent of torts. So we will discuss about them first, and after that we will come to our topic. The basis of law of tort is ubi jus ibi remedium. That is to say, where there is right, there is remedy. जहां भी आपके पास अधिकार हैं, उसका उपचार होगा. That is to say, when your right is violated, it will be compensated in law. So this is the basis of tort. Now, what are the elements of tort, or you can say constituent of tort? There are four things which constitute a tort or the entire subject. Number one is legal right. As I have said in this maxim, ubi jus ibi remedium, if right is violated, you will be compensated accordingly. So there should be a legal right. एक आपका विधिक अधिकार होना चाहिए. उस विधिक अधिकार के वायलेशन पर, उसको भंग करने पे आपको उपचार मिलेगा. ठीक है. तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट इज लीगल राइट. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव right to peaceful enjoyment of your house. Now someone is creating nuisance. What he is doing? He is intervening with your right. आपका जो अधिकार है एक शांतिपूर्वक रहने का, न्यूसेंस क्रिएट करके नेक्स्ट पर्सन उसको ब्रीच कर रहा है. नाउ यू हैव राइट टू टेक रेमेडी. यू कैन sue them in court to stop the nuisance or to pay the damages which you have suffered. And that legal right is violated by wrongful conduct. Suppose anyone has taken permission for creating nuisance. You can say, कोई शादी है, कोई बर्थडे है, तो लोग डीजे वगैरह लगा करके शोर मचाते हैं. Now they are legally permitted to do so. So you have no remedy there. But if that act is wrongful conduct, then you have remedy for that. And third one is legal injury. Again, we will move to ubi jus ibi remedium. What it is, it has been done here that your legal right has been injured. तो यहां जो शब्दों का हेरफेर है, लीगल राइट का वायलेशन या एबडक्शन या इंजरी क्रिएट करना, यानी वायलेट करना आपके लीगल राइट को, इट शुड बी देयर. कोर्ट में आपको प्रूफ करना पड़ेगा इस चीज को कि देयर इज लीगल राइट एंड इट हैज बीन वायलेटेड. ओके. एंड इफ यू प्रूव ऑल दीज थ्री थिंग्स, court will provide you remedy, which is in the form of damages, unliquidated damages, because the sum cannot be ascertained as it is ascertained in contract. The events or the misfortune cannot be foreseen like we see in contract. So therefore this remedy is, that is damages mainly. There is also two other remedies which are called injunction and restoration. We are not going in that. The major remedy, what you claim through court, is to monetary damages. Unliquidated means कि it has not been ascertained और वो केस को देख करके डिसाइड किया जाएगा. Suppose in case of defamation, the goodwill of person will be considered. अगर goodwill जैसी है तो amount of compensation ज्यादा या कम हो सकता है. So these are the four constituent of tort. Now this is the background of this subject. Now coming to our topic, that is general defense. तो एक एक करके हम देखेंगे. 7 तरह के डिफेंसेस इसमें है. डिफेंस मींस कि जो डिफेंडेंट है केस में, वो अपने फेवर में बचाव ले सकता है. कोर्ट में क्या प्लीड कर सकता है कि उसे रेमेडी ना पे करना पड़े या पनिश ना हो वो कोर्ट से. नंबर वन इज एक्ट ऑफ गॉड, है ना. दैट इज दिस मेजर. हिंदी में कहते हैं दैव कृत्य. मूवी भी आई थी इस पे, है ना, ओ माई गॉड. एक्ट ऑफ गॉड मीन्स कि अगर कोई अननेचुरल फोर्सेस कोई हार्म करती हैं, जैसे तूफान आ गया, बाढ़ आ गई, लैंडस्लाइड होगी जैसे नैनीताल में हो गया आज कल, उसकी वजह से
अगर कोई नुकसान किसी को पहुंचता है तो इस नुकसान के लिए क्लेम नहीं किया जा सकता। लेकिन इस पर एक एग्जांपल है, केस है बड़ा फेमस, रैलेट वर्सेस फ्लेचर का केस। वो क्लैट के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केसेस नहीं पूछे जाते, लेकिन उसमें हुआ यह था कि एक पर्सन ने एक रिजर्वायर वाटर का तैयार किया और उसका कुछ लैंड का अननेचुरल यूज किया, कुछ ज्यादा बड़ा ही रिजर्वायर बना दिया। बारिश हुई, रिजर्वायर से पानी एस्केप कर गया और बगल की कोल माइंस में किसी और की थी, वहां भर गया, नुकसान हो गया। मुकदमा किया गया कोर्ट में, तो कोर्ट में डिफेंस लिया गया कि एक्ट ऑफ गॉड था। तो यहां पर एक थोड़ा सा पेज है, एक्ट ऑफ गॉड भी कब आपको हेल्प करेगा, जब आप लैंड का अननेचुरल यूज ना कर रहे हो। इस केस में ऐसा हुआ था कि एक लार्ज रिजर्वायर बनाया गया था और नीचे उस रिजर्वायर में शाफ्ट लगे हुए थे जिससे पानी बह करके कोल माइंस में चला गया बगल के। अगर ये स्थिति ना होती और बारिश ज्यादा ना होती, ये डिफेंस मिल जाता। इस केस में मिला नहीं था। कोर्ट ने कहा था कि नहीं, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है आपकी और नेग्लिजेंस है आपका, तो यू हैव टू पे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप नेचुरल यूज कर रहे हैं, सपोज कोई पेड़ है आपके घर में, आंधी आई और पेड़ गिर गया बगल वाले के घर में, नुकसान हो गया, डैमेज हो गया, अब इस डैमेज के लिए क्लेम नहीं कर सकता। एक्ट ऑफ गॉड था, हमारी कोई इंटेंशन नहीं थी। ऑफेंस में आप जानते हैं कि इंटेंशन या बैड कंडक्ट जरूरी होता है, हालांकि टॉर्ट में मायने नहीं रखता है। आप अनइंटेंशनल भी टॉर्ट कर रहे हैं तो भी पनिशेबल है, स्टिल फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम इस चीज को समझते हैं। तो एक्ट ऑफ गॉड में होता क्या कि आपकी ना कोई नेग्लिजेंस होती है, ना कोई ऐसी विश होती है किसी को नुकसान पहुंचाना। सो ये एक एक्सक्यूज है, दैट इज डिफेंस, यू कैन से दैट, नंबर वन। नंबर टू, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, है ना। अगर मैं रॉन्ग डूअर हूं, मैं ही टॉर्ट कॉज कर रहा हूं और उस टॉर्ट को कॉज करने में मुझे भी नुकसान हो जा रहा है, नाउ आई कैन नॉट क्लेम। अब सपोज कोई पर्सन ट्रेसपास कर रहा है मेरे घर में, है ना, चोरी की नीयत से। अब वो घर के अंदर घुसा, कुत्ते ने काट लिया, या बिजली करंट लगा रखे हैं, मैंने उसे करंट लग गया 12 वोल्ट का। अब ये भी नहीं 220 वोल्ट का करंट आप लगा देंगे, तो अब तो लाइबल हो जाएंगे। तो आप जितना फोर्स जरूरी होता है ना, उतना फोर्स इस्तेमाल किया, अब उसको चोट लग गई, तो क्या वो स्यू कर सकता है हर्ट के लिए? नहीं कर सकता, क्योंकि वो खुद रॉन्ग डूअर है, गलत जगह पर एंट्री कर रहा है। अब वो लीगल राइट आपका वॉयलेट कर रहा है ना। सो जैसे सेल्फ डिफेंस में होता है, आप सेल्फ डिफेंस में आपको राइट है कि आप अपनी बॉडी की प्रॉपर्टी की सुरक्षा कर सकते हैं, लेकिन आप किसी को मार रहे हैं और उसने सेल्फ डिफेंस में आपको मारा, अब उस सेल्फ डिफेंस के अगेंस्ट आप सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते, लाइक दिस। तो इफ यू आर इन रॉन्ग, ये डिफेंस आपको नहीं मिलेगा। सेकंड, थर्ड इज वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया, लैटिन मैक्सिम है, इसको हिंदी में कहते हैं कि सम्मति से क्षति नहीं। अगर आप अपनी कंसेंट से जा रहे हैं कोई ऐसी जगह पर, जैसे सपोज इसका एग्जांपल लिया जाता है कि कोई एडवेंचरस स्पोर्ट्स में जा रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं आप, क्रिकेट खेलने में चोट लग जाती है आपको, अब आप उसके ऑर्गेनाइजर्स को, टीम को, कैप्टन को स्यू नहीं कर सकते, क्योंकि उस गेम का जो नेचर है वो आपको पता है कि इसमें चोट लग सकती है। ये जानते हुए भी यू आर द पार्ट ऑफ दैट गेम, नाउ यू कैन नॉट क्लेम damages from the opposite party or opposite batsman or bowler like this. तो वॉलेंटाइन नॉन फिट इंजुरिया के सिद्धांत में आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते, सामने वाला पर्सन जो है इसका डिफेंस ले लेगा। मैं केस लॉज में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि इस एग्जाम के लिए केस लॉज वगैरह डिस्कस नहीं किए जाते हैं। जैसे ब्रुकफील्ड का इस पे केस है, हेंस वर्सेस हॉरवुड का केस है, तमाम केसेस हैं इस पे। देन कम्स प्राइवेट डिफेंस, वो मैं इसका रेफरेंस दे चुका हूं आपको पीछे। प्राइवेट डिफेंस का मतलब है कि अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को डिफेंड करना थ्रू एनी एग्रेशन, ठीक। तो अगर मैं अपने आप को डिफेंड करते हुए किसी को चोट पहुंचा देता हूं और आई कॉज सम हार्म टू अदर पर्सन, ठीक है, दैट डिफेंस इज जस्टिफाइड इन आई ऑफ लॉ। आईपीसी में भी हम लोग देखते हैं इस चीज को, सेल्फ डिफेंस सेक्शन 96 से 106, ये कोई ऑफेंस नहीं है, आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो सेल्फ डिफेंस में सामने वाले को मैं चोट पहुंचा देता हूं, जैसे मैंने वो ट्रेसपास वाला एग्जांपल लिया है ना, बिजली करंट लगा रखा है या मैंने उस चोर को मार करके भगाने की कोशिश की, ट्रेसपासर को भगाने की कोशिश की, उसमें चोट लग गई, नाउ यू कैन नॉट क्लेम। वो मैंने राइट टू प्राइवेट डिफेंस में या सेल्फ डिफेंस में मैंने वो राइट एक्सरसाइज किया है, दैट इज द फोर्थ डिफेंस। इनएविटेबल एक्सीडेंट, कभी कभी स्थिति ऐसी हो जाती है कि तमाम सावधानी के बाद भी घटना घट जाती है, इनएविटेबल है,
तो इनएविटेबल एक्सीडेंट जिसमें मेरा कोई फॉल्ट ना हो, आई एम नॉट एट नेग्लिजेंट पार्ट, और अब मैं रैश तरीके से या नेग्लिजेंट तरीके से एक्ट नहीं कर रहा हूं और वो एक्सीडेंट इनएविटेबल है। अब सपोज आग लग गई किसी के घर में, मैं पानी फेंक रहा हूं, उस पानी से नुकसान हो गया, किताबें भीग गई या कंप्यूटर का नुकसान हो गया, दैट एक्सीडेंट वाज इनएविटेबल। सो इस तरह के जो एक्ट होते हैं वो एक्सक्यूजेबल है, उसमें कोई आपको डैमेज नहीं पे करना, आप डिफेंस ले सकते हैं। नाउ कम मिस्टेक। हालांकि मिस्टेक एज सच डिफेंस नहीं है, फिर भी एक्सेप्शनली इफ यू आर बिहेविंग इन गुड मैनर, इन गुड फेथ, और उस गुड फेथ को काम करने में गलती से, भूल से किसी को नुकसान पहुंच जाता है, तो सम केसेस में कोर्ट ने इसको भी एक डिफेंस माना है। जनरली टू कॉन्स्टिट्यूट द एक्शन ऑफ टॉर्ट, इंटेंशन डजंट मैटर। तो मिस्टेक में आप नेग्लिजेंटली बिहेव कर रहे हैं, रैशली बिहेव कर रहे हैं या गुड फेथ में बिहेव कर रहे हैं, डजंट मैटर, पनिशेबल होता है ये जनरली। बट एक्सेप्शनल केसेस में मिस्टेक है, इसके डेप्थ में नहीं जाएगा, वो इसकी एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछेगा आपके एग्जाम, इस एग्जाम के लिए पर्टिकुलरली। बाकी एग्जाम्स में पूछता है ये टॉर्ट, तो चाहे जुडिशरी के एग्जाम्स हो या एपीओ के एग्जाम्स हो या और भी जो होते हैं, उन सभी एग्जाम्स में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है। कोडिफाइड लॉ नहीं है, इसलिए इसको समझना जरा मुश्किल हो जाता है, केस लॉ से डेवलप हुआ, और इस तरह की चीजें हमारे यहाँ होती भी नहीं है बहुत ज्यादा। ये तो इंग्लैंड से इंपोर्ट किया गया इस एक्ट को। तो अब इंग्लैंड की जो सोशल नॉर्म्स हैं, वहां की सोशल कंडीशंस है कि हस्बैंड वाइफ के खिलाफ ही मुकदमा कर देता है कि तुमने मुझे हार दिलाने का वादा किया था, तुमने नहीं दिलाया, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो गया, इस तरह की चीजें। तो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता, तो जनरली देखने को नहीं मिलते इस तरह के एग्जाम्पल्स। टॉर्ट को कोई स्यू नहीं करता कोर्ट में। एंड लास्ट वन इज नेसेसिटी, आवश्यकता। अब जैसे सपोज आग लग गई है ना किसी एरिया में, लाइन से घर है उसमें, अब वो आग फैल ना जाए उस चक्कर में आप बीच के मकान गिरा देते हैं या झोपड़ियां गिरा देते हैं कि आग आगे ना फैले। तो वो आवश्यकता थी, नेसेसिटी थी, वो नेसेसिटी एक्सक्यूजेबल है। यहां ऐसे मत समझिएगा कि भूख लगी है तो चोरी करना नेसेसिटी थी तो चोरी कर ली, दैट इज क्रिमिनल रॉन्ग। यहां नेसेसिटी जस्टिफाइड नेसेसिटी की बात कर रहा है। तो दीज आर डिफेंसेस विच यू कैन टेक टू डिफेंड योरसेल्फ इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसको समझने से पहले इसके बैकग्राउंड में टॉर्ट कहां से आया और उसके पीछे लॉजिक क्या है, बेसिस क्या है। तो ये सारा बेसिस रेमेडी प्रोवाइड करने के लिए है, इसमें पनिशमेंट नहीं मिलती, सिविल टाइप का मैटर है। हाँ ये जरूर है, बहुत सारे टॉर्ट जैसे ट्रेसपास क्रिमिनल रॉन्ग भी है, तो पनिशमेंट दिलवानी है तो साइमल्टेनियसली आप क्रिमिनल केस भी डाल दीजिए कोर्ट में, दैट इज डिफरेंट थिंग। दोनों केसेस पैरेलल चलेंगे, यहां आपको डैमेजेस मिलेगा, कंपनसेशन मिलेगा, है ना, या कह लीजिए कि रेस्टोरेशन मिलेगा, रेमेडी मिलेगी, और वहां पर पनिशमेंट मिलेगी। जैसे डिफेमेशन है, प्राइवेट डिफेंस है, इस तरह की चीजें क्रिमिनल रॉन्ग भी हैं, साथ साथ में टॉर्ट भी है। दोनों में डिफरेंस यही है कि उसमें मेजर डिफरेंस कि उसमें पनिशमेंट रेमेडी है, क्योंकि माना जाता है कि जो क्राइम है वो अगेंस्ट सोसाइटी होता है ना, इट इज इन रैम, क्राइम इन रैम अगेंस्ट द सोसाइटी है, बट ये इन पर्सोनम है, पर्सनली। सो इसमें जो रेमेडी है वो सिविल रेमेडी है। अच्छा, ये जो हमने कॉन्स्टिट्यूएंट टॉर्ट के देखे थे, ये सारी चीजें निकल करके इन्हीं में से आई हैं, और ये इंटर रिलेटेड है। जैसे हमने देखा ना राइट है, ये राइट का वायलेशन कैसे होता है, रॉन्गफुल कंडक्ट से हो रहा है। ऐसा करने की वजह से, इस राइट के वायलेशन, रॉन्गफुल कंडक्ट की वायलेशन की वजह से आपको लीगल इंजरी हो रही है। इस लीगल इंजरी के पर्सन्स में आपको रेमेडी मिलेगी। बचाव पक्ष को क्या मिलेगा, अगर इसमें फॉल कर जाता है तो बच जाएगा, अदरवाइज डैमेजेस देने पड़ेंगे, विच कुड बी एनीथिंग। अब नॉमिनल डैमेज भी हो सकता है, 1 रुपए लगा के छोड़ दे कोर्ट, या एग्जेम्पलरी डैमेज भी हो सकता है करोड़ों में। जैसे केस हुआ था कि स्विमिंग पूल में पानी नहीं था और ऊपर से छलांग लगा दी एक फॉरेनर ने। अब उस सिचुएशन में अब सिर पे चोट लगी और डेथ हो गई उस पर्सन की, उसको 50 लाख का कंपनसेशन अराउंड अवार्ड हुआ था। तो ये एग्जेम्पलरी डैमेज है, ताकि सोसाइटी में एग्जाम्पल सेट हो जाए। जनरल डिफेंसेस, ये आपके क्लैट और एलेट एग्जाम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, मैंने इसको शॉर्ट में आप लोगों को समझाने के लिए या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितना हो सकता था उतना एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। इससे रिलेटेड नोट्स या एक्सप्लेनेशन लिंक में दिए हुए हैं पीडीएफ में, नीचे आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक।
We will meet in next class. Thank you very much.